प्रणाम मित्रों। एक्सरसाइज एक ऐसी क्रिया जिसको करने के बाद आपकी ओवरऑल लाइफ चेंज हो जाएगी। A new study shows people who exercise regularly have better sleep patterns and can lower the risk of insomnia. What they did was they cross-referenced people's daily headache diary with regional weather changes, and they found that for every The importance of fitness in sports in your career, your studies, education, whatever, is that your mind never gives up. No matter how hard your life gets. It gets hard for me, it gets hard for everyone. so I kind of am going to answer this. You know how we say the best sunscreen is the one that you wear? So I'm going to say like the best exercise, the best time to exercise is when you can fit it in for sure. Right. And there have been so many different studies about what time is the best time to exercise. And I think it really has to do with what your goal is. Human brain. And lower risk of early death from almost any cause, and up to 29% lower greenhouse gas emissions. Like, they talk about like cows. Sure. That really made me sit up and take notice. I was sitting at my desk writing a research grant. Identity, sitting and exercise that work through two different mechanisms and have different health consequences. What does attenuate mean? What does it mean, doctor? It means it can undo. And since then, there's been an accumulating body of evidence that suggests that by sitting, you raise your risk of insulin resistance, diabetes, cardiovascular. More health news, and something tells me many of you are going to like this. A short amount of exercise could have a positive impact on your health. A new study in the British Journal of Sports Medicine found 11 minutes of aerobic activity every day could lower your risk of cancer, cardiovascular disease, or early death. Aerobic workouts include walking, dancing, running, jogging, cycling, and swimming. Researchers say the exercises have to be done at a moderate to vigorous pace. I could do 11 minutes. I like this. You do. All right. In Good Health tonight, the U.S. Department of Health and Human Services has updated its guidelines for physical activity. Its first refresh in 10 years. The new message, move more. Start younger and every little bit helps. About 80% of U.S. adults and children aren't getting enough exercise for good health. The new guidelines spell out just how much we should be aiming for, while the previous guidelines began at age 6. Also recommended 2 sessions of muscle-building exercises like push-ups or lifting weights. Older adults should also do balance-improving exercises like yoga or tai chi to reduce the risk of falls. While the recommendations may sound overwhelming, if you're currently falling short, doctors say just moving more can help. तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि एक्सरसाइज होती क्या है। एक्सरसाइज एक ऐसी क्रिया है जिसमें कि आप अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करते हैं, आपका पूरा शरीर का उपयोग होता है, जिससे कि आपके पूरे शरीर की टूटन होती है। आपका शरीर टूटता है, टूटने के बाद एक नया शरीर बिल्डअप होता है, एक नए शरीर की रचना होती है, नया शरीर उभर के आता है। हमारे देश में एक्सरसाइज की प्रथा यानी एक्सरसाइज के बारे में करीब 2500 BC से की जा रही है। एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। हमारे इतिहास में कई पुस्तकों में इतिहास में आपके एक्सरसाइज को बहुत महत्वता दी गई है। ना सिर्फ इम्पोर्टेंस दी गई है, बल्कि एक्सरसाइज को करने के फॉर्म क्या होते हैं, उसका एक आइडियल फॉर्म क्या होता है, उसके तरीका क्या होता है करने का, वो भी बताया गया है, जिससे कि आपका शरीर एक मजबूत बनता है। यहाँ तक कि इतिहास में इस चीज को भी लेकर के बताया गया है कि एक्सरसाइज ना सिर्फ आपके शरीर को बजर बनाता है, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी बहुत स्ट्रांग बनाता है, आपके न्यूरॉन्स को बिल्ड करता है, एक आपके अंदर समझ लाता है, चीजों को करने की क्षमताएं पैदा करता है, और आपको हर चीज को देखने का नजरिया बदलता है। ये चीज बताई गई है हमारे इतिहास में साफ अक्षरों में। और साथ ही साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी के साथ फिटनेस का स्तर में उतार चढ़ाव आता रहा है। और हमारे इतिहास में पहले के समय में क्या है, हमारे एम्पायर्स में सक्षम और युद्ध के लिए एक फिटनेस केंद्र बनाया जाता था, जिसमें कि
कई आपके युवाएं हो गए, साथ ही सेनाएं हो गए, कई सारे यूथ्स हो गए, मेंस हो गए, घोड़सवार हो गए, शिकार हो गए, और भी कई सेनाएं उसमें भाग लेते थे। सब वहां जाते थे और अपनी भुजाओं को स्ट्रॉन्ग करते थे, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए एक सोल्जर की, एक सेना की भुजाओं में जान होना बहुत आवश्यक है, तभी वह युद्ध जीत के आएगा। यहाँ तक कि आप समझ पा रहे होंगे कि इतिहास में कितना इंपॉर्टेंस है एक्सरसाइज का, तभी एक एम्पायर खड़ा होता है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा होता है। उसी प्रकार से ये चीजें बताई जाती आ रही है। और साथ ही साथ अब उतार और चढ़ाव क्यों आया है इस फिटनेस लाइन में, पहले समझिए। चढ़ाव का तो समझ आता है कि ये एक बहुत अच्छा सोर्स है, एक स्वास्थ्य को, अपने आप को स्वस्थ करना बहुत बढ़िया सोर्स है। उतार इसलिए आया है इसमें क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की जनसंख्याएं बढ़ रही है, उसके साथ साथ कई मनोरंजन, आरामदायक चीजें भी बनाई जा रही है, जिसकी वजह से दिन पर दिन व्यक्ति और ज्यादा आलसी होता जा रहा है। उसके अंदर किसी भी काम करने की, काम को टालने की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसके व्यक्ति के अंदर एक आलसपन पैदा हो रहा है। वो व्यक्ति ना सिर्फ शरीर से कमजोर हो रहा है, बल्कि अपने इस मस्तिष्क से भी कमजोर होता जा रहा है। उसके अंदर किसी भी चीज को करने की विल पावर, क्षमताएं खत्म होती जा रही है। क्योंकि अगर व्यक्ति अपने शरीर, वो कहते नहीं है बॉडी फिट सो माइंड फिट, अगर आपका शरीर ही नहीं कुछ करेगा तो आपका माइंड कैसे कुछ सोचेगा, करेगा, समझेगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज ना करने के कितने सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कितनी चीजें आपको भुगतनी पड़ सकती है, कितना नुकसान हो सकता है आपको, आप कितने ज्यादा दुविधा में पड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं। मैं आपको, मेरे ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको इस चीज से रूबरू करा सकूं कि कितना इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज करना, आपके अंदर एक समझ आए, एक चीज डेवलप हो कि व्हाई एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्लाइड। तो आपको पहली स्लाइड की ओर ले जाना चाहूंगा मैं। तो इसमें पहला नुकसान जो होता है वो होता है वेट गेनिंग का। इसमें देखिए साफ लिखा गया है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि क्या चीज है। वेट गेन क्यों होता है हमारे शरीर में एक्सरसाइज ना करने की वजह से। देखिए, अगर आप कुछ भी क्रियाएं नहीं करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, आप सिर्फ खाते हैं, बैठते हैं, सोते उठते हैं, सिर्फ ये चीजें करते हैं, तो पता है क्या होता है कि अगर आप अपनी बॉडी का मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपके बॉडी का कैलोरीज कम बर्न होगा, बॉडी का कैलोरीज कम बर्न होगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ेगा, फैट ज़्यादा स्टोर होगा किसी एक जगह, जैसे लाइक पेट हो गया, बट्स हो गए, एंड सम थिंग्स, और भी चीज़ें, और भी कई मसल्स पे जाके वो चीज़ स्टोर हो सकती है। ये चीज़ें आपको आगे जाके नुकसान कर सकती है। और फैट के भी कई सारे नुकसान होते हैं फैटी होने के, वो हम आगे बात करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें बताया गया है कि आपकी पुअर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपकी बिगड़ सकती है, जिसमें कि आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपको रेगुलर आपकी एक्टिविटी करने में, जो आप डेली बेसिस पे करते हैं। आपके जॉइंट्स में पेन रह सकता है, मसल स्टिफ हो सकती है, और भी कई सारे नुकसान हो सकते हैं। थर्ड स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड लिखा है आपकी वीकनेस आ सकती है बोन और मसल में। देखिए, अगर आप किसी चीज को यूज नहीं करेंगे तो वो चीज तो कमजोर होगी ही, ऑब्वियस सी बात है। जब तक आप किसी चीज का मूवमेंट नहीं करेंगे, किसी चीज को उपयोग नहीं करेंगे, तो वो चीज कैसे यूज में आएगी, कैसे स्ट्रांग होगी। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। आपकी बोन वीक हो सकती है, मसल वीक हो सकती है, जिसकी वजह से आगे जाके आप कोई भी चीज करोगे तो आपको इंजरीज हो सकती है। आप बहुत जल्दी आपके कई जगह चोट लग सकती है, हड्डियां कमजोर होने की वजह से थोड़े थोड़े चोट भी आपको बहुत दर्द देंगे। तो ये 3 चीजों का ध्यान जरूर रखें। उसके बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है। हेल्थ इश्यूज कैसे हो सकता है? देखिए, अगर आप अपने शरीर से कोई काम नहीं करेंगे, कोई क्रियाएं नहीं करेंगे, मूवमेंट में नहीं आएंगे,
तो आपके शरीर को एक मैसेज जाएगा, आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा कि आपने लेट्स सपोज कोई काम मिला हुआ है आपको, आप उसको डीले करते जा रहे हैं, एक पहाड़ बन गया है आपके ऊपर, तो ऑब्वियस ही बात है आपके ब्रेन पर उस चीज का इफेक्ट जरूर आएगा। आप डिप्रेस होगे, लेजीनेस आएगी आपके अंदर, आपको स्ट्रेस हो सकता है, आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो सकते हैं इस चीज को लेकर के। क्योंकि देखो, अगर आप कोई काम ही नहीं कर रहे तो ऑब्वियस ही बात है ब्रेन भी फंक्शनिंग करना बंद कर देगा और वो सिर्फ चिंताएं करेगा। वो कहते नहीं है चिंता चिता के समान है, तो वो वाला फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा। आप सिर्फ चिंताएं करेंगे अगर आप शरीर से काम नहीं लेते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में कहता है पुअर स्लीप क्वालिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर इफ यू आर नॉट डूइंग योर फिजिकल एक्टिविटीज तो आपको एक थकावट नहीं होगी, रात को अच्छी नींद नहीं आएगी, आप लेट नाइट तक जगेंगे, आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी, बहुत सारी चीजें आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं पुअर स्लीप क्वालिटी के। देखो, चाहे आप ब्रेन से वर्क करते हो, चाहे बॉडी से वर्क करते हो, तो आपको एक बेटर स्लीप लेना बहुत जरूरी है। अगर आप बेटर स्लीप नहीं लेते हैं तो ना आपकी ब्रेन की रिकवरी होगी, ना आपकी बॉडी की रिकवरी होगी, आपका ना मेमोरी ढंग से काम करेगा, आप पूरे दिन सुस्त महसूस करोगे। तो ये बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है आपकी पूरी बॉडी पे, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्लीप क्वालिटी से। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। रिड्यूस्ड कॉग्निटिव फंक्शन। अब इसमें एक्सरसाइज हैज बीन इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव फंक्शंस, हेल्थ इश्यूज, रेगुलर एक्टिविटीज कैन इम्प्रूव योर। हाँ, तो वही वाली चीज बताई गई है। रेगुलर यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट बता दिया गया है कि कॉग्निटिव फंक्शन अगर आप नहीं करते हैं तो आपके पोस्चर में, आपके पोस्चर जॉइंट, आपके कई सारे फंक्शन, यहाँ तक कि आपके इंटरेस्ट मतलब अंदर के सिस्टम भी वर्क करना कम कर देंगे, कम एफर्ट डालेंगे, बहुत जोर पड़ेगा उस पर कोई चीज करने पे। अब आगे चलते हैं। 7th में कहता है ये इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। क्रोनिक डिजीजेस में कहता है कि इंक्लूडिंग डायबिटीज, जिसमें कि आप कोई भी चीज आप सक्षम नहीं हो पाओगे किसी चीज को करने में, आपको प्रॉब्लम्स आएगी इफ यू आर नॉट डूइंग फिजिकल वर्क। सो आपको कई सारी डिसीजेस हो सकते हैं लाइक डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो यार ये इतने हैवी चीजें हैं जो बता नहीं सकते, ये बीमारियां बहुत बुरी होती है। एक्सरसाइज यार जरूर करें, मैं तो यही कहूँगा। फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है इंसान का। एक हेल्दी आपको वेट, अगर आप करते हैं तो आपको वेट मेंटेनिंग में भी हेल्प मिलेगी। तो यही चीज़ें हैं। और एक्सरसाइज ये आपकी बहुत ज़्यादा आपको हार्म कर सकती है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो यही कुछ फैक्टर्स हैं। और हाँ, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो साथ ही साथ आप एक गलत चीज़ों की ओर लाइक आप जाएंगे, एक बैड हैबिट्स की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के कॉन्शियस नहीं होंगे, अगर आप अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस नहीं होंगे, जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करता है वो अपने शरीर के विज्ञान को नहीं जान पाता है, इसलिए वो बुरी आदतों की ओर बढ़ता है। लेट्स सपोज सिगरेट और अल्कोहल समथिंग, नशा पानी की ओर बढ़ता चला जाता है। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए जानते हैं एक्सरसाइज करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपको इन बेनिफिट्स के बारे में जान के बहुत खुशी होगी, आपको हैप्पी फील होगा बहुत ज़्यादा कि इसके इतने भी फायदे हो सकते हैं। और यार देखो, आगे जाके आपको ही फायदे हैं, ये चीज़ें करोगे। इतिहास में तो बहुत सी बातें बताई गई है इन चीज़ों को लेकर के, पर उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल के मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको भी खुशी होगी कि ये सारी चीज़ें हैं, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि ये चीज़ें मैं क्यों करूँ, एक रीज़न मिलेगा। चलिए जानते हैं दोस्तों इस आर्टिकल के ज़रिए कि इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। चलिए, तो आर्टिकल में पहली चीज़ बताई गई है कि एक्सरसाइज कैन मेक यू फील हैप्पियर। एक्सरसाइज जो क्या है, आपके मूड को बहुत अच्छा बनाता है, आपको हैप्पी फील कराता है, एक स्ट्रेस फ्री हार्मोन रिलीज करता है। केवल 10 से 30 मिनट के एक्सरसाइज से आपका मूड बहुत बढ़िया इम्प्रूव हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, आपको बहुत बढ़िया फील हो सकता है,
आप पूरे दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं, आपकी ब्रेन सेंसिटिविटी को भी कम कर सकता है, आप लेट्स सपोज कई हैबिट्स में आपकी पकड़ बना सकता है, एक कंट्रोल ला सकता है। तो ये फर्स्ट थिंग में बताई गई, फर्स्ट स्लाइड में बताई गई है। सेकंड स्लाइड में चलते हैं। इसमें बताया गया है कि एक्सरसाइज कैन हेल्प विद वेट मेंटेनिंग। वेट मेंटेनिंग में हेल्प करता है, क्योंकि आप लेट्स सपोज आप एक दिन में 2000 कैलोरीज खाते हैं, तो आप उतना बर्न कर लेते हैं। अगर आपके जो भी आपके फिटनेस या फिटनेस से रिलेटेड कोई भी गोल हो, बॉडी बिल्डिंग या एनीथिंग, आपको उसमें हेल्प मिलती है, आप वेट मेंटेन कर पाते हैं। और साथ ही साथ आपका डाइजेस्टिंग फूड, आपका फूड डाइजेशन भी बढ़िया होता है। एक्सरसाइजिंग मेंटेनिंग बॉडी फंक्शन में हेल्प मिलती है। साथ ही साथ आपका हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, आपकी हार्ट बीट इंप्रूव होती है, हार्ट ट्रेन होता है एक्सरसाइज करने से। और साथ ही साथ आपके ब्रीथिंग में भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। रिड्यूस कैलोरी इनटेक, हाँ, कैलोरी इनटेक को रिड्यूस करने से आप वेट लूज कर सकते हैं, उतना बर्न कर सकते हैं, बर्न करके आपका जो भी गोल है उसके अनुसार आप चीजें कर सकते हैं। एंड देन चलते हैं थर्ड स्लाइड की ओर। थर्ड स्लाइड में बताया गया है एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर मसल एंड बोन्स। हाँ जी, तो पीछे बताया गया था ना करने के नुकसान और करने के फायदे। आप करोगे तो आपके मसल स्ट्रांग होंगे, मसल माइंड कनेक्शन बढ़ेगा। कोई भी वर्क करोगे तो आपको पता होगा कि कौन सी मसल से कैसे उस चीज को लिफ्ट करने से, उठाने से आपका एक बढ़िया फॉर्म बनेगा। आपको कोई इंजरी फ्री रहोगे, कोई इंजरी नहीं होगी, आपके बोन स्ट्रांग होंगे, आप कोई भी चीज करोगे तो पूरी एफिशिएंसी के साथ कर पाओगे, एक बढ़िया पकड़ मिलेगी चीजों में। एक्सरसाइज कैन इंक्रीज योर एनर्जी लेवल। ऑब्वियस सी बात है, एक्सरसाइज करोगे, मूड स्विंग होगा तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका पूरा दिन बिल्कुल हैप्पी जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा। तो ये चीजें हैं, एनर्जी हेल्प करेगी। 6th स्लाइड में बताया गया है एक्सरसाइज कैन हेल्प स्किन हेल्थ। जी हाँ, स्किन हेल्थ में भी एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है, आपकी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करती है, क्योंकि ब्लड, अब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी मसल्स इंप्रूव होगी, आपके टिश्यूज बिल्ड होंगे, बल्कि आपकी स्किन भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। देन एक्सरसाइज कैन हेल्प योर ब्रेन हेल्थ एंड मेमोरी। यस, एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, आपकी सोचने समझने और चीज़ों को करने की क्षमताएं बढ़ती है, ब्रेन ट्रेन होता है, आपके न्यूरॉन्स बिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से आपके मेमोरी पावर आपका बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ये चीज़ें हैं। एंड चलते हैं 8th स्लाइड पे। 8th स्लाइड पे बताया गया है एक्सरसाइज कैन हेल्प विथ रिलैक्सेशन एंड स्लीप क्वालिटी। यस, एक्सरसाइज करने से आपको रिलैक्स फील होता है, और साथ ही साथ आपके शरीर का जब टूटन होता है, शरीर टूटता है, तो रात को अच्छी नींद आती है, जिसकी वजह से आप शरीर को अच्छे से रिकवर कर पाते हैं, माइंड को अच्छे से रिकवर कर पाते हैं, और आप चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं। देन इसमें 8 स्लाइड्स है, मे बी इसमें ये भी बताया गया है 9th स्लाइड में एक्सरसाइज कैन रिड्यूस पेन। यस, एक्सरसाइज आपके पेन को रिड्यूस कर सकता है। आपके कोई भी आपको डिसीजेस हो या फिर कोई भी चीज हो, तो वो चीज आपकी इम्प्रूव हो सकती है एक्सरसाइज को करने से। ये आपका एक फ्री ट्रीटमेंट है, अगर आप इसको अच्छे से कंसिस्टेंटली करें तो। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ता है, स्ट्रक्चर बेटर होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी डेली बेसिस पे काम करने की क्षमताएं, जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करने की क्षमताएं आपकी बढ़ती है, आप चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी क्षमताएं बढ़ती है चीज़ों करने की, आपकी एंड्योरेंस बढ़ती है। एंड दीज थिंग्स हेल्प्स यू, आपकी हेल्थ इंप्रूव करने में मदद करती है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको मदद करती है, कि बताती है कि आप किस तरह एक्सरसाइज करने से आपकी ओवरऑल हेल्थ कितनी इम्प्रूव होती है।
हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट का आंसर मिल गया होगा कि क्या होती है चीज़ें, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही मोर इंगेजिंग वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सपोर्ट दिखाएं अपना। मिलता हूं मैं आपको किसी और बढ़िया टॉपिक के साथ, फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।